During the process of maturation, billions of variations of T cells are formed, each carrying a unique surface protein called T cell receptor, TCR. In addition, a population of T cells called helper T cells also has a receptor named CD4, while a second population of cytotoxic T cells carries CD8 receptor. In the process of development, T cells also learn to not react to the body's own antigens. Those that react to self molecules are eliminated. Mature T cells then migrate to lymph nodes and other lymphoid tissues, where they await exposure to pathogens. Basically, specific immunity relies on the invading pathogen finding a match among these billions of T cell variations. Only the ones that can bind to the pathogen are selectively activated. T cells, however, cannot bind free-floating pathogens. They can only bind to pieces of the pathogen bound to a certain host molecule, called major histocompatibility complex, or MHC, on the surface of so-called antigen-presenting cells. There are two classes of MHC. MHC class I molecules are expressed by all nucleated cells of the body. These molecules are constantly produced in the cytoplasm and, on their way to the cell membrane, pick up pieces of peptides and display them on the cell surface. If a cell is infected by a virus or is cancerous, a foreign or an abnormal antigen is displayed, and the cell can bind and activate a matching T cell. MHC1 only binds CD8 receptor, thus activating only cytotoxic T cells. MHC class II molecules occur exclusively on professional antigen-presenting cells, of which dendritic cells are most effective. Resident dendritic cells on the site of infection swallow up pathogens, cut them into pieces, and display them on MHC2 molecules on their surface. These dendritic cells then migrate to the nearest lymph node, where they present the antigens to a matching T helper cell, whose CD4 receptor binds to MHC2. Activation of T cells, however, requires a second binding between the two cells. This is the verification step. A safeguard mechanism serves to prevent the immune system from overreacting. Once activated, T cells undergo repeated cycles of mitosis in a process called clonal expansion. This process produces clones of identical cytotoxic and helper T cells, both of which are specific to the pathogen. Some of these cells differentiate into effector cells, while others become memory cells. Most effector T cells leave the lymph node for the bloodstream and are delivered to the site of infection, where they carry out immune attack against the pathogen. Helper T cells produce interleukins, which help with the activation of cytotoxic T cells, B cells. जी बेटे, देखा है आपने? Yes, sir. Yes. हेलो, बेटे देखा है आप लोगों ने? जी सर, देखा है। जी सर। मेरा ख्याल है थोड़ी सी Yes, समझ sir. लगी होगी, ज्यादा समझ नहीं लगी होगी, ऐसा ही है? जी सर। Yes, sir, ज्यादा समझ नहीं आई। ज्यादा समझ नहीं। चले, मैं आपको एक और दिखाने लगा हूं, और फिर वो देखें तो फिर इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है, कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है बेटे? Okay, sir. Phase begins when an invading bacteria is phagocytized, engulfed, by an antigen-presenting cell, APC. A lysosome containing digestive enzymes combines with the phagosome to process the antigens. The processed antigens combine with the MHC class II proteins and are presented on the surface of the APC. Helper T cells, CD4+,
recognize the displayed antigen on the APC and bind to the MHC class II antigenic peptide complex. This binding triggers the APC to release the cytokine IL-1, which activates the helper T cell. The activated helper T cell releases the cytokine IL-2, which stimulates the T cell to proliferate. Thus, producing many helper T cells, each with a receptor specific for the original processed antigen. The effector phase begins when a B cell that exhibits on its surface an IgM receptor specific for the same antigen originally engulfed by the APC encounters and binds the antigen. The B cell engulfs the complex by receptor-mediated endocytosine. The phagosome containing the antigen fuses with a lysosome. The antigen is processed. The processed antigen binds MHC class II protein and is displayed on the surface of the B cell. Helper T cells now bind to the displayed antigen on the surface of the B cell, causing the helper T cell to release cytokines. The cytokines stimulate the B cell to divide and proliferate into identical B cell copies. The B cells differentiate, change and develop into antibody-producing plasma cells and memory cells. The plasma cells release antibodies with a specificity identical to that of the surface receptors on the parent B cell. These carry out the ultimate goal of fighting the foreign invaders. The released antibodies bind in a lock and key fashion to the antigen on the surface of the original bacterial invaders. This makes it easier for killer cells to attack and destroy the bacteria by phagocytosis, and the release of proteins causes the direct lysis of the bacteria. Simultaneously, a blood component known as complement is signaled to attack and puncture holes in the bacteria. जी बेटे, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चले, अच्छा, बेसिकली ये मैंने आपको ये दो जो हैं 4-4 मिनट की जो वीडियोस हैं वो दिखाने का मतलब था कि थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन आपको करनी थी कि जो हमने आज डिस्कस करना है। अच्छा, मुझे कैंडिड सा ओपिनियन बेटे बता दें कि आपको इसमें से कितने % समझ लगी होगी, ताकि उस हिसाब से हम देखें। 50%। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर आपको 50% भी लग गई है तो बहुत है, 30% भी लग गई है तो बहुत है। कोई ऐसे भी होंगे मेरी तरह के जिनको शायद थोड़ा सा समझ ना लगी हो, कम लगी हो, ठीक है ना? हाँ, तो कोई नहीं मसला। वो ये मैंने दिखाने का था कि कुछ टर्मिनोलॉजी का आपको थोड़ा सा पता चल जाए, कुछ एमिनेशन आपको पता चल जाए, तो फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो फिर आप अपनी वो चीजें जो नहीं उधर समझ सके तो फिर उनको आप आर्टिकुलेट कर सकेंगे उन आइडियाज को। तो सबसे पहले आप जो हमने पढ़ना था वो कल हम लिम्फोसाइट्स पढ़ रहे थे, राइट? तो लिम्फोसाइट्स की हमने ओरिजिनेशन पढ़ी थी। तो हमने बताया कि ये मल्टी प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो कि आगे कुमेटेड सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, और वो दो तरह के सेल होते हैं, एक को माइलॉइड कुमेटेड सेल होते हैं और एक है लिम्फॉइड कुमेटेड सेल्स, अगर आपके ज़हन में हो। ये
ये रहा, फिर ये रहा कि एक माइलॉइड कोमेटेड सेल है और एक जो है लिम्फोइड कोमेटेड सेल्स है। हमने इनमें जो माइलॉइड सेल्स में हमने प्लेटलेट्स भी पढ़ लिए, ग्रेनुलोसाइट सारे पढ़ लिए थे और इरिथ्रोसाइट। इसमें एक और सब पॉपुलेशन होती है, वो है मोनोसाइट्स। अच्छा, अब मेरी आपसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डू यू नो व्हाट आर द मोनोसाइट्स? किसी को पता हो कोई? मैक्रोफेजिस। शाबाश, मोनोसाइट्स जो है वो बेसिकली मैक्रोफाजेज ही है। अच्छा, ये इनका टाइम पीरियड अगर आप इसको देखें तो ये दे आर लिटिल बिट मोर देन कंपेयर टू द अदर ग्रेनुलोसाइट्स, बट दिस इज ए टाइप ऑफ द ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स क्या है? इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह के न्यूट्रोफिल का फंक्शन था। अगर हमें न्यूट्रोफिल का फंक्शन थोड़ा सा ज़हन में हो तो हमने कहा था कि इसका न्यूट्रोफिल का काम जो है वो बैक्टीरिया या वायरसेस को डेड करना है। या अब वो डेड करने के दो मैकेनिज्म थे हमने पढ़े, चाहे वो फेगोसाइटोसिस के जरिए करे, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर नेटवर्किंग ट्रैपिंग सिस्टम दे दे तो उसकी वजह से करे, व्हाटसोएवर इज। इसी तरह मोनोसाइट्स का भी यही काम है कि मोनोसाइट्स आर मेंट but they are little bit bigger cells, therefore they are primarily meant for the digestion or the phagocytosis of the foreign invaders of the antigens। ये तो फिर आपने कहा न्यूट्रोफिल्स का इसी तरह के काम हो गया, लेकिन इसका एक अलग काम भी है। वो अलग काम जो कि न्यूट्रोफिल्स का नहीं है, दिस इज a second surveillance cells are the second line of defense। एक तो ये है कि ये बड़े बड़े सेल्स को भी इनगल्फ कर सकता है या बैक्टीरिया को भी इनगल्फ, क्योंकि इसका साइज बड़ा है न्यूट्रोफिल से, और ये इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा। अगर न्यूट्रोफिल्स फर्ज कीजिए 2 बैक्टीरिया को अगर फेगोसाइटोज कर सकता है तो ये 10-12 को एट ए टाइम फेगोसाइटोज का, तो इसका मतलब इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा, तो फंक्शन सेम है। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजेंस। ये आपने मूवीज में भी देखा, ये जो अभी हमने एक पहली मूवी जो हमने देखी थी और दूसरी भी देखा, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ द एंटीजेंस। इसका क्या मतलब है? अगर हम न्यूट्रोफिल देखें तो न्यूट्रोफिल के लाइसोसोम एंजाइम आते थे और बैक्टीरिया और वायरस को या जो थे डेड कर देते थे, लेकिन ये क्या करता है, ये उन बैक्टीरिया वायरसेस को डेड तो करता है प्लस उसके में से एंटीजेंस निकालता है। वो एंटीजेंस जो कि डिजीज कॉज करती हूं या जिसको कह देंगे फॉरेन एंटीजेंस, और फिर वो फॉरेन एंटीजेंस को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब है उसके साथ एक और पॉलीपेप्टाइड को मिलाता है और अपनी सेल्फ सरफेस के ऊपर रख देता है। वो जब सेल सरफेस के ऊपर रखता है तो वो उसको जो सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको कहता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस, और दूसरी जो एंटीजन है वो उस बैक्टीरिया या वायरस की एंटीजेंस होती हैं, और उन दोनों को वो मिला के बिल्कुल अपने सेल सरफेस के ऊपर लेके आता है। जस्ट लाइक अभी मैं बता रहा हूं, जस्ट लाइक दीज सेल्स। अगर आप इन सेल्स को देखें बेटे, मैं अभी आपको इधर नहीं है या इधर दिखा देता हूं, अगर आप नजर आ रहा हो अगर आपको, तो ये जो है ये मैक्रोफाजेज है। इस मैक्रोफाजेज के ऊपर ये एक एंटीजन है जो येलो कलर की नजर आ रही है। फर्ज कीजिए वो एक ही किस्म की एंटीजेंस हैं जो, अब इस एंटीजेंस के साथ वो कपल्ड करके एक और प्रोटीन पेप्टाइड लेके आ रहा है जिसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस। अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर ये आगे के आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा जो एक एडिशनल काम है वो एडिशनल काम मैक्रोफाजेस का ये है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब आपका पता चला कि जी ये काम का मकसद क्या है। ये काम का मकसद ये है कि यहां से फिर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। न्यूट्रोफिल जो था वो आपकी इनेट इम्यूनिटी थी, वो कुछ नहीं करता था,
वो बस आता था, फॉरेन एंटीजेंस को डेड कर देता था। वो फर्स्ट वॉरियर थे, वो फर्स्ट सोल्जर थे जिनको कुछ नहीं पता था। दीज आर कॉल्ड एज कमांडोज। ये कमांडोज क्या करते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स को तो ट्रैप करते हैं, फेगोसाइटाइज करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनकी इंटेरोगेशन करते हैं, जिसका नाम मैंने प्रोसेसिंग बताया। इंटेरोगेशन करके ये एक एक इंफॉर्मेशन उसमें से अलग करते हैं। एक एक इंफॉर्मेशन का मतलब है एक एक एपिटोप या एक एक एंटीजन उसमें से अलग करते हैं, और वो फिर एंटीजन अलग करके क्या करते हैं, अपनी सेल सरफेस के ऊपर लेके आते हैं, ताकि यहां से वो काम स्टार्ट करें जिसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, कि इस एंटीजेंस के खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाई जाए, चाहे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज हो, और चाहे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ कोई साइटोटॉक्सिक सेल्स हो। अगर तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल्स बने जिसका नाम हम एंटीबॉडीज कहते हैं, तो उसका नाम हम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। वो किसी एंटीजेंस के खिलाफ हो गया। अगर वो रिस्पॉन्स किसी ऐसी एंटीजेंस के खिलाफ हुआ या किसी और जिसमें के ना एंटीबॉडीज बने बल्कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ द किलर टाइप ऑफ द सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स बने, वो साइटोटॉक्सिक सेल्स वही काम करें जो एंटीबॉडीज किलिंग का कर रही है, तो फिर हम ये इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मेरी बात समझिए आप बेटे? यस सर। अच्छा, अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, अब आपको इसका रोल पता चल गया कि ये बेसिकली मैक्रोफाजेज हैं। अब ये जहां जहां आपको समझते हैं ना कि फॉरेन एंटीजन्स आ सकती हैं, वो इस जगह पे जाके कमांडोज वहां पे सुकून से बैठ जाते हैं, और जब वहां पे बैठते हैं तो अपने आप को डिसगाइज कर लेते हैं, अपने आप का वो, और जहां बैठते हैं उसी तरह का अपना नाम रख लेते हैं ताकि ये उसी तरह के लोग लगें। और मिसाल के तौर पर अगर ये लंग्स में चले गए तो लंग्स में हम इनका नाम रख देते हैं एल्वियोलर मैक्रोफाजेस। अगर ये स्किन में चले गए तो इसको कह देते हैं सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर ये किडनी में चले जाएं तो इसमें कह देते हैं हम मेसेंजियल सेल्स। अगर ये ब्रेन में चले जाएं तो हम कह देते हैं ग्लायल सेल्स। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में चले जाएं इसको कह देते हैं हिस्टोसाइट्स। अगर ये लिवर में चले गए तो उनको कह देते हैं कुफर सेल्स। तो ये जितने भी सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने भी नाम नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है बल्कि ये मैक्रोफाजेस हैं, और जहां पे टिश्यू पे जाके ये बैठ जाते हैं, इसलिए इनका काम हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस के अलावा ये प्रोसेसिंग ऑफ द एंटीजेंस भी करते हैं। राइट, समझ लगी आपको? यस सर। अब हम ये देखेंगे कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाएं या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएं। ये अब दो इम्यूनिटी बनाएंगे। अब हम अगला ये डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर इन्वॉल्व्ड in the production of antibodies in the form which is called as humoral immunity, or how these antigens presenting cells they are participating to elicit another response which is called as cell mediated immune response, which is actually production of the some special type of toxic cells which are very specifically destroying the antigens. Clear? तो सबसे पहले फिर हम कौन सा स्टार्ट करें? अगर इस डायग्राम्स को देखें तो अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, और ये या साइटोटॉक्सिक सेल्स बना देंगे जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बताएंगे, या जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है जिसको के बी सेल्स बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक डिफरेंस नजर आया कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इसमें जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो सेल्स हैं बी सेल्स। ये वही सेल्स हैं जो बोन मैरो या लिवर में या बर्सा फेब्रिशियस में प्री प्रोसेसिंग होती थी,
और यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होंगे मिलियंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द सेल्स पॉपुलेशन बनती थी, जो इंडिविजुअल एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने की उसके पास क्वालिटी है। अगर एक दुनिया में 10 करोड़ एंटीजेंस हैं तो इसका मतलब 10 करोड़ बी सेल्स आपकी बॉडी में अवेलेबल होंगे, क्योंकि हर एक ने स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करना है। ये नहीं होगा कि एंटीजेंस बी है तो उसका बी लिम्फोसाइट जो ए हो तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले, नो। इसलिए दीज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। और दूसरा इम्यूनिटी है, दे आर कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स। और वो जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं जो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम करते हैं उनको कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि लिम्फोसाइट्स फिर आगे दो तरह में डिवाइड हो गए, एक बी लिम्फोसाइट्स कह दिया और एक को कह दिया टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स वो जो साइटोटॉक्सिसिटी करें, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में आए, उसको कहते हैं CD8 सेल्स, या इसका दूसरा नाम है जनरल साइटोटॉक्सिक सेल्स, और दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने ये देखा कि चाहे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो चाहे ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, ये इम्यूनिटी ऑप्टिमम उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि हमें एक और पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स ना मिल सके जो कि इन सेल्स को, जो इस इम्यूनिटी को, जो इस C8 सेल्स को या B सेल्स को एक्टिवेट करे, ज्यादा फ्लरिश करे, ज्यादा ग्रोथ करे, ज्यादा डिफरेंशिएट करे, ज्यादा माउंट करे इम्यून रिस्पॉन्स को। और वो जो सेल्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को जो है वो ज्यादा करता है या इन्हांस करता है या रेगुलेट करता है, that is called as T cells। तो आप तो कहेंगे ये वही सेल्स हैं जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं। No, these are another type of the cells and their name is called as T helper cell. They are also called as CD4 cells. So the CD4 cells are the cells which are responsible for making either humoral immunity or making a cell mediated immunity and an active process। अगर ये सेल टी हेल्पर सेल्स हमारे पास नहीं होंगे तो ये उसी तरह साइटोटॉक्सिसिटी तो पैदा होगी लेकिन बड़ी लो होगी, एंटीबॉडीज तो प्रोडक्शन होगी बड़ी लो होगी। तो आप ये समझ लें, एक गलत किस्म का मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल देने के लिए कि ये एक वो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को तो स्लो चल रहा होता है, लेकिन इस प्रोसेस को ज्यादा करने के लिए वो जो प्रोसेस है वो T4 हेल्पर सेल्स की रिक्वायरमेंट। तो अब हम ये पढ़ेंगे पहला रिक्वेस्ट कि जी ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे बनती है, T4 हेल्पर सेल्स का क्या काम है, और फिर मैक्रोफाजेस क्या करते हैं, और बी सेल्स फिर कैसे बनते हैं। जी बेटे समझ लगी आपको? यस सर। पढ़ें फिर आगे? जी सर। चलें, अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये नजर आ रहा है, ये एरिया आपको यस सर। यस सर आ रहा है। यस सर। ये अब ये जो पीपीटी आपको नजर आ रही है, फिर हम इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके सर। ठीक है, लें जी पहला प्रोसेस फिर आपने खुद ही मुझे बताना है। व्हाट हैपन्स, फर्ज कीजिए बेटे किसी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर हो गए, ठीक हो गया। अब जो ही बॉडी में एंटर हुए सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चूंकि किसी भी जगह से हो, लेट्स सपोज वो स्किन से एंटर हुए, तो स्किन के अंदर आपको पता है टिश्यू मैक्रोफाजेस होते हैं, और वो जो टिश्यू मैक्रोफाज जो उधर होते हैं अपना लिबास बेस बदल के, उनका नाम हमने रखा होता है सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। वो क्या करेंगे, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि बेसिकली हमारे जासूस ही हैं, वो क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया को वो फेगोसाइटोज कर लेंगे, तो ठीक हो गया। फेगोसाइटोज करके वो उनको डेड कर देंगे, ये भी ठीक हो गया। बट in addition to the destroying with the phagosome or the lysosomes, they will try to process the individual antigens which are present on that foreign proteins। और उस फॉरेन प्रोटीन्स को जो ही वो
उसको प्रोसेस करेंगे, साथ साथ एक और प्रोटीन बनाएंगे जिसको कहते थे मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन, MHC टाइप 2 एंटीजन। ये देखे ना, और उन सेल्स को कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को प्रोसेस किया, राइट हो गया, और साथ एक अपनी MHC पॉलीपेप्टाइड एंटीजन बना ली जो कि प्रोसेस एंटीजन के साथ यूनाइट की हुई। इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बताएं बेटे, ये समझ लगी आपको? यस सर। ये अगर नहीं समझ लगी तो आगे नहीं No, बढ़े। sir. नहीं समझ लगी, चलो कोई नहीं। अच्छा, ये आप देखें, ये आपको समझ लग रही है? ये तस्वीर नजर आ रही है? Yes, sir. आ रही है। अच्छा, फर्ज कीजिए पहले स्टेप में व्हाट हैपन, दे फेगोसाइटोज द एंटीजन्स। एंटीजन्स अंदर ले गए, एंटीजन्स अंदर लेके उसको डेड किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद दो चीजें उसने निकाली। वन वाज ये येलो कलर की जो नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, जो कि उसने फेगोसाइटोज की थी। एक वाई शेप का आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट यू कैन से दैट इट इज कॉल्ड एज मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन। आप कहेंगे इसका क्या काम? बेसिकली अगर ये एंटीजन्स नहीं होगी, then the working of the T helper cells cannot be done. So the cells can only work, T helper cells, if the antigen presenting cells contain a major histocompatible antigens. Is it clear? Yes, sir. Clear. अब ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको कहेंगे हम एंटीजन प्लस मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस कॉम्प्लेक्स, ये दोनों सरफेस के ऊपर, ये देखें हमारे सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं काफी सारे। और आपको पता है एंटीजेंस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। जब स्पेसिफिक इन नेचर एंटीजेंस हैं बेटे, तो अब वो क्या करेंगी, टी हेल्पर सेल्स। अब टी हेल्पर सेल्स वो वाला हेल्पर सेल्स होगा जिसको CD4 हेल्पर सेल्स भी कहेंगे, जिसके ऊपर स्पेसिफिक तरह का रिसेप्टर्स होगा जो उस प्रोसेस एंटीजेंस को कंप्लीमेंट कर रहा होगा, जिसकी शक्ल उस जैसी होगी। क्लियर? ठीक है सर। एंड साथ ही साथ उसके ऊपर एक ऐसा रिसेप्टर्स भी होंगे जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस का कंप्लीमेंट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस APC सेल्स ने ना बनाई होगी, तो फिर क्या होगा कि ये टी हेल्पर सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता होगा, चाहे एंटीजन उसने प्रोसेस कर भी दी हो। क्लियर? Yes, sir. So what happens as soon as a specific T4 या CD4 helper cells which contains a receptors very specific to the process antigens and receptors very specific to the major histocompatible antigens, when they combine together, then these helper cells which were as simple cells, then it becomes activated. कैसे एक्टिवेट होगा? Because the antigen processing cells secrete some of the chemical messengers. That chemical messengers will act on the T helper cells, और T helper cells को नॉन एक्टिवेटेड से एक्टिवेशन में कन्वर्ट कर देगा। यानी एक्टिवेशन से मुराद उसकी सारी मशीनरी अंदर की जो राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, उसको एक्टिवेट करेगा कि अब आपके पास कुछ काम करना है और जो काम करना है उसके लिए तैयार हो जाओ। And that is called as activated CD4 activated T helper cells. कब बनता है? फिर मैं बताता हूँ। Whenever the processed antigens and the major histocompatible antigens combine with the receptors present on the T helper cells, which are very specific to the processed antigens and very specific to the major histocompatible antigens, when they combine together, the antigen presenting cells, which are basically jasus, which are basically macrophages, which are called antigen presenting cells, they secrete a special type of the chemicals, and that special type of the chemical is called interleukin 1. Then interleukin 1 act on the T helper cell, and then T helper cells
convert into activated T helper cells. और जो ही T activated helper cell हुआ, then helper cell, T activated helper cell started forming another type of the chemicals, a series of the chemicals which are generally said as cytokines or which are generally said as lymphokines. इसमें interleukin 2, 3, 4, 5, 6, gamma interferon, ये सारी की सारी जो हैं ये रिलीज करना शुरू कर देते हैं। बेटे बात समझ लगी? यस Yes, sir. फिर मैं दोबारा बताता हूं। फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेसिंग ऑफ द एंटीजेंस, सेकंड स्टेप इज द process antigen which major histocompatible antigens are presented on the surface of the macrophages. तीसरा, the T helper cells which are very specific one, they have receptors very specific to the antigens, and major histocompatible antigens, they find the antigen presenting cell and then they combine with each other. When they combine with each other, the antigen presenting cells secrete a chemical which is called interleukin 1. Then these T helper cells after interleukin 1 are converted into activated T helper cells. Now as soon as the activated T helper cells are formed, they secrete many type of the cytokines, जिसका दूसरा नाम lymphocytes भी है। और अगर सब टाइप देखें तो इंटरल्यूकन 2, 3, 4, 5, 6 तक इंटरल्यूकन है। वो जब स्टार्ट करता है तो वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं lymphocytes. One is that T helper cells, they also act upon itself, इसको कह देंगे ऑटो हार्मोन। वो ना सिर्फ अपने ऊपर एक्ट करके और ज्यादा एक्टिवेशन अपने आप को कर देता है, जिसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, बल्कि वो स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिन सेल्स का नाम हम कह देते हैं बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। क्या करता है बी लिम्फोसाइट्स को? बी लिम्फोसाइट्स को वो मुख्तलिफ किस्म के उसको एक्टिवेट करता है, उसकी ग्रोथ करता है और उसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। किस में डिफरेंशिएट करता है? दे डिफरेंशिएट इनटू 2 मेजर सब क्लासेस ऑफ द बी सेल्स। फिर मैं दोबारा बताता हूं। लिम्फोकाइंस, when they are released from activated T helper cells, it formed 3 functions. Number 1, it also act on itself T helper cell and activate more and more and more T helper cells, ताकि ज्यादा से ज्यादा immune response आए। Number 2, it acts on another population of the cells which is called as B cells. And then under this B cells, the B cells cause the growth, and large number of the B cells are produced. Rather, they are also differentiated into different type of the 2 population of the cells. One is called as plasma cells and the other is called as memory cells. Plasma cells या memory cells. Plasma cells are the cells which are responsible for the production of the antibodies. और जो ही वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज ब्लड में फेंकना शुरू कर देता है, और ब्लड में हम कहते हैं कि उस एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, और वो उसी तरह की एंटीबॉडीज हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने पहले बनाई थी। एंड द सेकंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज मेमोरी सेल्स। वो मेमोरी सेल्स वो वाले मेमोरी सेल्स हैं जो कभी भी दोबारा अगर उसी तरह की एंटीजेंस अगर आ गई तो वो टी हेल्पर सेल्स की मदद लिए बगैर फौरन प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो जो मेमोरी सेल है जिसकी के मेमोरी सालों साल तक भी रह सकती है, सारी उम्र भी रह सकती है, वो दोबारा अगर उसी तरह की एंटीजन हमारे ब्लड में दोबारा आ गई तो वो दोबारा उसको मेमोरी सेल्स को दोबारा उसमें कन्वर्ट करके प्लाज्मा में करेगा, और जब दोबारा करेगा तो फिर जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी ना सिर्फ क्विक होगी बल्कि ज्यादा कंसंट्रेशन में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी। और तीसरा काम ये होगा, वो शॉर्टकट हो जाएगा, उसने कोई टी हेल्पर सेल्स की मदद नहीं लेनी। हो सकता है कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की भी मदद ना ले, वो डायरेक्ट ही उसको फौरन एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। इसलिए
यही वो कॉन्सेप्ट है बेटे जिसमें हम कहते हैं वैक्सीन की 2 डोजें, जैसे आजकल कोविड की 2 वैक्सीन की डोजें नहीं लगा रहे हम। क्यों? क्योंकि पहली डोज जब लगाते हैं तो ये सारे का सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, विच टेक्स अ टाइम ऑफ अबाउट 21 डेज। एंटीजन प्रेजेंटिंग ने एमसीएससी के साथ मिली, टी हेल्पर सेल आया, टी हेल्पर सेल ने लिम्फोकाइंस रिलीज किए, लिम्फोकाइंस ने बी सेल्स बनाए, बी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बने, उसने ग्रोथ को डिफरेंशिएट करके प्लाज्मा सेल बनाए, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन विच आर वेरी वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन। जब दोबारा हम वही एंटीजेंस की डोज देते हैं, जब दोबारा डोज देते हैं तो देन दे डोंट नीड टी हेल्पर सेल्स, they directly attach with the either the B cells or the memory cells, and then these memory cells are converted into the B cells, and then they started forming the antibodies. एक तो time कम हो गया, and then the antibodies production is also very very high in concentration, and that is called secondary immune response. इसलिए हमने उस डोज को सेकंड डोज भी दे देते हैं। जी बेटे समझ लगी आपको? यस सर। कोई ऐसी चीज मेरा बेटा जिसको ना समझ लगी हो? कोई नहीं है? नो सर, लग गई है। अच्छा, तो क्या अब दोबारा वो फिल्म दिखाऊं या इज इट ओके? सर दिखा दे। अब दिखा अगर दे आप सर। अब आप मेरा बेटा देखेंगे ना तो देन यू विल, अब आपको अच्छा लगेगा, मतलब समझ लग जाएगी अब आपको। The activation phase begins when an invading bacteria आवाज आ रही है ना is मेरी इसकी? engulfed by an antigen presenting यस सर, आ cell, रही है। APC. A lysosome containing digestive enzymes combines with the phagosome to process the antigens. The processed antigens combine with the MHC class II proteins and are presented on the surface of the APC. Helper T cells, CD4+, recognize the displayed antigen on the APC and bind to the MHC class II antigenic peptide complex. This binding triggers the APC to release the cytokine IL-1, which activates the helper T cell. The activated helper T cell releases the cytokine IL-2, which stimulates the T cell to proliferate. Thus, producing many helper T cells, each with a receptor specific for the original processed antigen. The effector phase begins when a B cell that exhibits on its surface an IgM receptor specific for the same antigen originally engulfed by the APC encounters and binds the antigen. The B cell engulfs the complex by receptor-mediated endocytosine. The phagosome containing the antigen fuses with a lysosome. The antigen is processed. The processed antigen binds MHC class II protein and is displayed on the surface of the B cell. Helper T cells now bind to the displayed antigen on the surface of the B cell, causing the helper T cell to release cytokines. The cytokines stimulate the B cell to divide and proliferate into identical B cell copies. The B cells differentiate, change and develop
into antibody producing plasma cells and memory cells. The plasma cells release antibodies with a specificity identical to that of the surface receptors on the parent B cell. These carry out the ultimate goal of fighting the foreign invaders. The released antibodies bind in a Fock and key fashion to the antigen on the surface of the original bacterial invaders. This makes it easier for killer cells to attack and destroy the bacteria by phagocytosis, and the release of proteins causes the direct lysis of the bacteria. Simultaneously, a blood component known as complement is signaled to attack and puncture holes in the bacteria. जी बेटे, आप समझ लगी थोड़ी बहुत? यस सर, आ गई है समझ। हाँ जी, तो कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना, आगे पढ़ें या बस इधर तक ही रहें? सर इतना ही काफी है। सर इतना बहुत है। अच्छा, सेल, अच्छा नेक्स्ट आपने सेल मेडिएटेड खुद करेंगे या वो भी मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम? सर हम करके आएंगे और डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। चलें, अभी वैसे 6 मिनट चलें, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि कल फिर जब कहेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लेके आनी है, और प्लस आपने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपने पढ़नी है। ओके सर। ठीक है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे 3 लेक्चर होंगे ना, उस 3 लेक्चर में हम ब्लड खत्म कर दें साला। यस सर। कोई क्वेश्चन बेटे? कोई सर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ब्लड वाले चैप्टर में है? हाँ, ये ब्लड वाले चैप्टर में है। आपने कोई ये नजर एफएससी तो में नहीं भी आई। पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटे। सर ब्लड वाला चैप्टर हमने क्या बेटे? ब्लड वाला चैप्टर हमने कंप्लीट करना है। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक जो होगा ना, वो ब्लड हम कंप्लीट कर दें। इसमें 2 चीजें और रह गई हैं, एक ब्लड क्लॉटिंग रह गया और एक ब्लड ग्रुपिंग रह गया, बस ये 2 हैं। और सर प्लेटलेट्स और न्यूक्लियर हेमोस्टेसिस शायद वो भी है, वो भी पढ़ना है। प्लेटलेट्स उसी में ब्लड क्लॉटिंग में ही आ जाएंगे ना प्लेटलेट्स। सर ये एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोसाइट के बाद ल्यूकोसाइट सर, उसके बाद प्लेटलेट्स वाला ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो कहीं भी नहीं नजर आ रही। इसमें नहीं है? नहीं सर, है सर है इसमें। हाँ, तो बस एबीओ ब्लड ग्रुप बड़ा आसान सा है, आपने एफएससी में भी किया हुआ, वो फिर हम करेंगे। यस सर। ठीक है जी। और कोई बेटे कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसका एक टेस्ट ले लें, अगर आप एग्री करेंगे तो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो वो टेस्ट करके तो फिर हम इसका कर लेंगे। ठीक है, चलें बेटे। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज।
भाई मीटिंग बंद करने का वो मन नहीं कर रहा, छोड़ दो मीटिंग अब।